Hello everyone. So once again I'm here with you to continue solutions. So in our last video we have seen Raoult's law. Raoult's law में हमने क्या क्या देखा था? हमने Raoult's law देखे थे, उसके एप्लीकेशंस देखे थे, उसका ग्राफ देखा था, ठीक है? And lastly we conclude that the solutions which obey Raoult's law are known as ideal solutions, and the solutions which do not obey Raoult's law are said to be non-ideal solutions. Okay, so today we will deal with the distinction between ideal solutions and non-ideal solutions. Okay, so let's start with ideal solutions. So as I told you, what are ideal solutions? Solutions which obey Raoult's law over entire range of concentration they are said to be ideal solutions. Clear? So these are said to be ideal solutions. So ideal solutions basically वो होंगे जो Raoult's law को ओबे करेंगे. So Raoult's law होता क्या था? जनरली हमने एक ग्राफ के थ्रू देखा था. We have plotted a graph between pressure and mole fraction, and we are getting a graph somewhat this way. Okay, so जो भी solutions इस ग्राफ को ओबे करेंगे they are said to be ideal solutions. Clear? So यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर हम theoretical pressure calculate कर रहे थे. How we are calculating theoretical pressure? P total हम calculate कैसे करते थे? Theoretical pressure मतलब P total. So how we are calculating P total? We are adding pressure of both the components. So PA क्या होता था basically? PA naught into XA and PB is PB naught into XB. Clear? So ideal solutions क्या होंगे? Ideal solutions ऐसे solutions होंगे जिसमें जो हमारा calculated pressure है that is equal to observed pressure. ठीक है? ये जो हमारा theoretical pressure है it should be equal to observed pressure. Observed pressure मतलब जो experimentally determined value आएगी वो, और जो हमने theoretical determined value निकाली है, if these two values exactly matches each other, then such type of solutions are said to be ideal solutions. Clear? Next, ideal solutions में हमने first point ये देख लिया. Second हमारा theoretical pressure is equal to observed pressure. Third, जो ideal solutions होंगे उनका change in volume है ना, del V of mix or del V of solution we can say should be equal to 0. Now what does it mean? Okay, let's see. So we have taken, let us talk about intermolecular forces of attraction first. जब हम solution बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? A component और B component को mix कर रहे हैं और हमने एक solution बना लिया AB. ठीक है? सपोज A जो है हमारा सॉल्वेंट है, B जो है हमारा सॉल्यूट है, और ये AB जो बन रहा है ये हमारा सॉल्यूशन है. क्लियर? A सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दैट इज AA टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो BB टाइप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है. इसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, तो उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, सिमिलर बॉन्डिंग होगी AA और सॉल्यूट के बीच में BB. नाउ इन केस ऑफ सॉल्यूशन वी आर मिक्सिंग टू कंपोनेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो A और B के बीच में होगी. क्लियर? सो जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात करेंगे सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर forces, AA, BB and AB. We can say solvent-solvent interaction, solute-solute interaction
and solvent forces of interaction. Clear? So del V mix of solution 0 कब होगा? तो आपने क्या किया, A कंपोनेंट लिया और B कंपोनेंट लिया, ठीक है, और इससे हमारा बन गया C, A प्लस बी, सॉरी, ठीक है, A प्लस बी. सो यहाँ हमने इसका 5 ml लिया, यहाँ हमने इसका 5 ml लिया, टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 ml. ठीक है. सो अगर मैंने डेल वी ऑफ मिक्स निकाला, सो डेल वी निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. इन दोनों का एडिशन को इससे माइनस कर देंगे, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, इट इज 10. सो 10 माइनस 10 इज 0. क्लियर? सो आइडियल सॉल्यूशंस वो होंगे जिसका चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फोर्थ, दैट इज डेल एच, एंथैल्पी चेंज. ठीक है. तो डेल एच जो होगा आपका मिक्सचर या सोल्यूशन का, दैट शुड बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन. ठीक है. अब ये 0 कैसे होगा, तो ये 0 कैसे होगा, फर्स्ट आई यूज टू राइट द केमिकल रिएक्शन. यहां पर होगा क्या, ए सॉल्वेंट को बी सॉल्यूट में ऐड किया, सो वी आर गेटिंग दिस सॉल्यूशन. नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, ए के बीच में बॉन्ड्स पहले टूटेंगे, बी के बॉन्ड्स टूटेंगे, और यहाँ पे ए और बी के बीच में न्यू बॉन्ड जो है फॉर्म होंगे. ठीक है. जब हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, सो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है सिस्टम को. सो सपोज इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस बॉन्ड आई हैव प्रोवाइडेड 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी. इसको भी ब्रेक करने के लिए हमने 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की. जब ए बी मॉलिक्यूल बना, तो यहां पर क्या हो रहा है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, या आई हैव रिटन 2 AB मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी लिख सकता हूं. तो जब AB के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो जब यहाँ पे बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड हो रही है. ठीक है. तो जब AB के बीच में बॉन्ड बना, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हो रही है 10 किलो जूल, और दूसरे बॉन्ड बनने पे 10 किलो जूल. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पर डेल एच की वैल्यू निकालूंगी, तो एनर्जी सप्लाइड कितना है, 20. एनर्जी रिलीज्ड कितनी है, 20. सो इट इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये तीनों ही सेम है, इसीलिए तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है. ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसलिए मुझे ब्रेक करने के लिए भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, और जो फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी सेम है. इसका मतलब इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम, तीनों में सेम होंगे, वेदर इट इज ऑफ AA टाइप और BB टाइप और AB टाइप. तीनों में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम होंगे. अल्टीमेटली द रिजल्ट इज del H of mix or solution is 0. Clear? So these are about ideal solutions. Please take screenshot and be sure that you are making proper notes of all the topics. So we have seen ideal solutions. क्या होते हैं ideal solutions? Which obey Raoult's law. ठीक है. जो Raoult's law को obey करते हैं, we are getting such type of graph where theoretical pressure is equal to observed pressure. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या देखा था, where del V of mix, or we can say del V of solution should equal to 0. And fourth point is del H of mix और del H of solution should equal to 0. ठीक है. तो ये था हमारा आइडियल सोल्यूशन. तो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन. इसका एग्जांपल क्या है, N हेक्सेन प्लस
N-heptane. The solution containing N-hexane and N-heptane. Next, benzene plus toluene. Benzene plus toluene. Last is methanol plus ethanol. ठीक है? So these are the three examples of ideal solutions. तो basically ideal solutions के जो example होते हैं, you have seen, देखो यहाँ पे हमने अल्केन अल्केन का combination लिया है, यहाँ पर हमने अल्कीन अल्कीन का combination लिया है. This is alcohol. So generally ideal solutions are those which contain same functional group. Which contain same functional group. Okay guys, so these are all about ideal solutions. इसका एक और एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, दैट इज क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन. क्लियर? सो ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली बहुत रेयर होते हैं, बहुत जल्दी आसानी से आइडियल सॉल्यूशंस मिलते नहीं है हमें, बट होते हैं. ठीक है, बहुत रेयर होते हैं पर होते हैं. सो दीज आर ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, सो आई होप दैट यू गाइज बेटरली अंडरस्टूड आइडियल सॉल्यूशंस एंड यू हैव कॉपीड ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. ठीक है, मैं यही समझ के चल रही हूँ दैट यू आर नोटिंग ऑल द थिंग्स in your notebook properly. Okay, and take revisions of all the things on regular basis guys. Read your NCERT properly. Clear? So let's see non-ideal solutions. Non-ideal solutions are basically those which do not obey Raoult's law. Which do not obey Raoult's law. Means here in case of non-ideal solutions we are not getting such type of graph. Clear? Non-ideal solutions are those where P theoretical is not equal to P observed. जो हमारा theoretical pressure आएगा वो observed pressure से बिल्कुल भी equal नहीं होगा. Clear? सो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है उसमें हमें ये क्राइटेरिया देखना है. सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. आइदर थ्योरेटिकल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर इज लेस देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर. क्लियर? सो इफ द थ्योरेटिकल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, अगर हमें थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर से ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन. एंड इफ द थ्योरेटिकल प्रेशर इज लेस देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव डेविएशन. एंड डेविएशन फ्रॉम व्हाट? डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. ठीक है, मतलब इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा? जो हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था ऐसा, हमने प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन लिया था, इसमें हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा. मतलब जो हमारा ऑब्जर्व्ड प्रेशर है उससे हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है. सो वी विल गेट, हमें ऐसा हाईलाइटेड कर्व मिलेगा. ठीक है, हमें हर जगह पर क्या होगा? थोड़ा सा उठा हुआ ग्राफ मिलेगा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा. ठीक है, दिस इज राउल्ट्स लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं. ठीक है, अब यहां पर हो क्या रहा है? पॉजिटिव डेविएशन हमें क्यों मिल रहा है? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वी हैव सीन कि यहाँ पे 3 टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे. So in this case where we are getting theoretical pressure more, what does it mean? हमारा जो solute और solvent interaction है
उससे ये वाला जो हमारा सॉल्यूशन का इंटरैक्शन होगा, इसके जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ये वीक होंगे। यहाँ के जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे तो ये जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे एज कंपेयर टू दिस, और इसलिए यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है इसलिए प्रेशर जो है थ्योरेटिकल दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू पी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो वी कैन से दैट पी ए प्लस पी बी का जो वैल्यू आएगा है ना इज ग्रेटर इज लेस देन पी टोटल। मतलब जो हमारा थ्योरेटिकल प्रेशर आएगा इट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड प्रेशर। So here intermolecular forces of attraction is weak, hence vapor pressure हमारा ज्यादा बनेगा। Let's see the example. If we have added ethanol plus water, हमने solution बनाया इथेनॉल और वाटर का। सो इथेनॉल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और एक न्यू बॉन्डिंग होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन में सोल्यूशन में वीक बॉन्डिंग आ जाती है। अगर वीक बॉन्डिंग हो जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सो इसलिए पॉजिटिव डेविएशन हमें मिलेगा, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, hence we are getting this positive deviation. Clear? So this is positive deviation. Now let's see negative deviation. तो positive deviation में हमें theoretical pressure ज्यादा मिल रहा था, इसलिए हमने इसे क्या बोला, positive deviation। बट यहां पर क्या हो रहा है, theoretical pressure की वैल्यू कम आ रही है एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो यहां हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, जो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, दिस इज द आइडियल ग्राफ प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और हमें यहां पर ग्राफ जो मिलेगा वो निगेटिव ग्राफ मिलेगा लाइक दिस। ठीक है, तो यहां पर हमें निगेटिव ग्राफ मिलेगा, मतलब जो हमारा वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर। अब ऐसा क्यों होगा, तो यहां पर भी हमारे पास तीन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। सो यहां पर क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इन दोनों के कंपैरिजन में जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गए तो वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, हेंस वी आर गेटिंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर? सो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज नेगेटिव डेविएशन। ओके, नाउ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Some other points are remaining, we'll cover in next. Next point, second है del V of mix. Okay, let's see intermolecular forces of attraction जो हमारा AB का बन रहा है, इसमें intermolecular forces of attraction क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, है ना। सो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू AA एंड BB। इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, एंड हेंस वी आर गेटिंग मोर वेपर प्रेशर। थर्ड, डेल V ऑफ मिक्स, डेल V ऑफ मिक्स जो मिलेगा दैट इज ग्रेटर देन 0। हाउ, इसको सिंपल समझते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन का वीक हो जाएगा, ए और बी के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है,
है ना, एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, सो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे एंड दे आर कंज्यूमिंग मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू ए एंड बी। यहाँ पर क्या होगा, एक में को वो रिपेल करने लग जाएंगे, इसलिए उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा मतलब वैल्यू जो आएगी डेल वी की वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन चेंज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा डेल एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। In case of positive deviation, it is also greater than 0. Why it is greater than 0? Let's see. AA और BB को हमने मिक्स किया और हमें मिला AB, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, जब मैं AB को ब्रेक कर रही हूँ, so I required suppose 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, है ना, और AA और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने सिमिलर मान लिया, तो यहाँ पे भी मुझे 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी लग रही है, ठीक। बट यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ए बी का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू दीज टू, ये जो हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, इसलिए तो वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, वेपर प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, इसलिए तो पी थेरेटिकल का वैल्यू बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जर्व्ड प्रेशर। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये वीक है तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो सपोज एक के लिए अगर आपकी एनर्जी हो रही है 6 किलो जूल, तो दो के लिए कितनी हो जाएगी 12 किलो जूल, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड कितनी है 20, रिलीज कितनी हो रही है 12, तो आपके पास क्या हो रहा है पॉजिटिव 8 वैल्यू बच रही है। इट मींस एंथैल्पी ऑफ सिस्टम हमारे पास है। सो अगर डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर? सो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल एच ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। सो दीज आर पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे ए बी में, दैट इज लेस एज कंपेयर टू ए एंड बी बी। इसका मतलब जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन है, दे आर मोर एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इसलिए हमारे पास यहाँ पर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मोर वेपर प्रेशर, ठीक है। डेल वी ऑफ मिक्स हमारा पॉजिटिव होगा, डेल एच ऑफ मिक्स हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट इज नेगेटिव डेविएशन। सो इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ए एंड बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा, एंड हेंस वी आर गेटिंग नेगेटिव डेविएशन। नाउ नेक्स्ट, इस केस में हमारा जो डेल वी मिक्स आएगा, ठीक है, इट इज लेस देन 0। नाउ हाउ इट इज लेस देन 0, क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, है ना। पहले जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उससे ज्यादा हो गया है, तो मॉलिक्यूल और भी पास पास आ जाएंगे, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड हेंस वी आर गेटिंग डेल वी मिक्स इज लेस देन 0। नेक्स्ट हमारा डेल एच। सो यहाँ पर जो डेल एच ऑफ मिक्स आएगा दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। यहाँ पर हमारा डेल एच मिक्स क्या होगा, निगेटिव। लेट अस सी हाउ। यहाँ पर जो हमने ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू ए बी, ठीक है। तो इसे तोड़ने में मुझे 10 किलो जूल की एनर्जी लगी, इसे भी ब्रेक करने के लिए मुझे 10 किलो जूल की एनर्जी लगी, बट क्योंकि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स विल गेट, तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसमें क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना। दिस थिंग्स वी हैव रेड अर्लियर, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी।
सो सपोज यहाँ पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से ज्यादा है, सपोज 12 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, सो दो मॉलिक्यूल के लिए कितनी हो जाएगी 24. सो डेल एच एनर्जी सप्लाइड कितनी है 20, रिलीज कितनी हो रही है 24. सो कितना हो रहा है -4. मतलब हमारी डेल एच की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है निगेटिव आ रही है. सो रिएक्शन कैसे हो गया एक्सोथर्मिक, मतलब डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. सो दीज आर पॉजिटिव डेविएशन, solution showing positive deviations and the solution showing negative deviation. Positive में जो हमारा theoretical pressure होगा that is greater as compared to observed pressure, and in case of negative deviation theoretical pressure is less as compared to observed pressure. So non-ideal solutions क्या होते हैं basically, जो Raoult's law को obey नहीं करते. It means theoretical pressure is not equal to observed pressure. Clear? Please take screenshot. Let's see some examples of positive deviation, solution showing positive deviation from Raoult's law. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे बेंजीन प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म. These examples are very much important. इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है. So you have to memorize all the examples very carefully. Now in case of negative deviation, chloroform plus acetone. ठीक है. This is acetone. यहाँ पर क्या होगा क्लोरोफॉर्म से लिंकिंग होगी. So यहाँ पर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बट जब इन दोनों ने रिएक्ट किया सोल्यूशन में हमें यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है. इसका मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट इज डाइथाइल ईथर क्लोरोफॉर्म और एनी टाइप ऑफ ईथर. ओके, डाइमिथाइल ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म इज आल्सो एसीटोन एंड एनिलीन. So this is all about deviations from Raoult's law. So we have seen positive deviation, negative deviation, non-ideal solutions, all about non-ideal solutions. So I hope guys that you have understood all these things. Take screenshot first. So up to here, read NCERT carefully, and if you have any doubts, please mention on comment box, and do like, subscribe and share. Thank you.